90 لوگ 88 to 90 لوگ سن رہے تھے، ان کے سامنے انہوں نے دماغ، ٹھیک ہے نا، دماغ میں انہوں نے دوسروں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ صفیہ بہن کا کوئی ایسی راز ان کے پاس آ گیا ہے، جی ٹھیک ہے، ایسا راز ان کے دماغ کوئی آ گیا جو کہ اگر وہ بڑے کو تفتیش نمائی ایک بات نظر آ گئی، تشویش ہو گئی ہے،
ہے وہ اب سب سارے سوچتے رہیں گے کہ خدا وہ نخواستہ میں تنویر بھائی نے جو آپ ہے نہیں بتانا چاہتا، وہ آپ کی عزت خراب ہوگی. عزت خراب ہوگی. ٹھیک ہے صفیہ، آپ کوئی بات نہیں، آپ ان سے ابھی علیحدہ فون کر کے ان سے بات پتہ کر لیں، اور بے شک اگر انہوں نے یہ ایسے کہی ہے تو غلط فہمی بھی تو ان تک ہو سکتی ہے، ان کو پتہ چل سکتا ہے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی، کیونکہ ہمارے جو مربی صاحب ہیں نا، ہیڈ مربی صاحب، یہ ان کے کزن ہیں، تو اگر انہوں جو نے جو سویڈن ہے کے مربی بتائی ہے کوئی صاحب، بات تو جو جی جی سویڈن کے مربی، اچھا اچھا جی جی صحیح. جی ہیڈ مربی جو ہیں. انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی، میں قسم خدا کی کھاتا ہوں. اچھا، پھر وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی، ٹھیک ہے تنویر بھائی، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اگر آپ ادھر نہیں بتانا چاہتے تو میں آپ کو جو ہے نا ابھی کال کرتی ہوں. تو یہ بھی نہیں کہ کوئی آپ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسی کوئی غلط بیانی، یعنی کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا، تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ بات کر کے کلیئر ہو سکتی ہے مربی آپ کو صاحب کے ساتھ؟ پیاری بہن، آپ کو چاہیے سوشل میڈیا پہ آپ نہ آئیں. میں آپ سے درخواست کروں گا، اگر آپ چاہتی ہیں پھر معافی ہو جائے، معافی ایک ہو ہی بات جائے، ہے نا، پھر یا ایک ہی بات ہے نا. آپ کی وہی عزت بحال ہو، آپ استغفار کریں اور آپ ضرور درخواست دیں. آپ کو انشاءاللہ سوشل میڈیا اتنی یعنی کہ بڑی ٹک غلطی ٹاک، نہیں ہے آپ کی. تو بتا دینا میرے پیٹ میں درد شروع ہو گئی ہے بھائی، ایسے تو نہیں کریں. اتنے مہینوں کے بعد مجھے کوئی امید نظر آئی ہے. تنویر بھائی اتنے مہینوں کے بعد ایک امید دلائی ہے، وہ بھی. اچھا، پھر ہم فٹافٹ اگر کال کر لیں تو پھر ہو سکتا ہے تو کچھ بتا دیں، خوشخبری مل جائے مجھے، کیونکہ مجھے ایک دفعہ بات پتہ چل جائے تو پھر تو. ان کو کال کریں، ان کا نمبر لے کے نا ان کو کہیں میرے سے بات کریں. جی تنویر بھائی. تنویر بھائی، میری کال سے پہلے کوئی کال نہ لیجیے گا، نہیں تو آپ مجھے راز نہیں بتائیں گے. تنویر بھائی آپ میوٹ ہیں. ہاں اب وہ تنویر بھائی کال کر لوں آپ کو؟ ہاں جی، غلط فہمی تو پیدا ہو رہی ہے. میرے خیال میں آپ پرائیویٹ ہی کال کرنا ان کو، وہ زیادہ بہتر ہے. تو ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی نا کہ کوئی نہ کوئی کلو آپ جیسے چاہتی تھی مل گیا، بالکل تو بالکل، یہ تو بڑی پازیٹیو یہ بات بڑی ہے. خوشی کی بات ہے. جی تنویر بھائی اگر آپ نے میری بات سن رہے ہیں تو پلیز میری کال لے لیں ڈائریکٹ، کوئی اور تو نہیں کال آ گئی؟ پھر انہوں نے بتانا ہی نہیں مجھے کچھ. کیونکہ میری عزت کے اوپر بھی بات ہے تھوڑی سی. عرفان بھائی کہہ رہے ہیں اب کیا نیا ڈرامہ چل رہا ہے. عرفان بھائی آج کا بڑا تکلیف دہ ڈرامہ تھا، لیکن اس کی اینڈنگ مجھے لگتا ہے بڑی اچھی ہونے والی ہے.
तनवीर भाई अल्लाह के वास्ते माइक अनम्यूट करके ऑफ कोर्स इज्जत का मामला है। अब मैं क्या करूं? मेरे ख्याल में उन्होंने अगर कहा है तो ठीक है, आप प्राइवेट ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो कुछ हाँ लेकिन वो माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं तो सही कि मुझे मैं आपको लगता है नंबर उनको प्राइवेट कॉल आई है, फिर नहीं मुझे कुछ बताएंगे। उनको शायद कॉल किसी की आ गई है अभी शायद। साहब ने ना कर दियो। ये हमारे मुरब्बी साहब के हैं, कज़न है, हेड मुरब्बी साहब। तनवीर भाई क्यों सूली पे लटका के खुद म्यूट होके बैठ गए हैं? अल्लाह के बाद से माइक खोलें। मैं इतने महीनों के बाद मुझे एक उम्मीद की किरण टिमटिमाती नजर आई है, जवाब दे दें। आई डोंट नो मैं क्या करूं, अपना वो नहीं खोल रहे माइक। वो शायद चलें, कोई थोड़ा सा जब भी दोबारा की बात हो तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। लेकिन जो बस बहरहाल थोड़ा सा जो बात करने का स्टाइल था वो थोड़ा सा तकलीफ दे था, इसलिए मैं भी ऊपर आई। मैंने सुना ही था तो ये मुझे थोड़ा सा लगा, और ये ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी बातें अलग है, कोई भी बात हो तो आप अपना प्रोग्राम आप दोबारा शुरू कर लें। जब वो फिर बात करेंगे उनको उतारे नहीं, जब वो बात करेंगे तो फिर बेशक आप जी मैं आ गया हूँ, मैं जरा बिजी हो गया था। जी फरमाएं। अच्छा जी तनवीर भाई, फिर क्या फैसला हुआ? नहीं, फैसला तो आपके हाथ में है। मुझे बताएं मैं क्या करूं, जो आप कहेंगे मैं कर लूंगी। आप सोशल मीडिया को छोड़े मतलब और टिकटॉक ये सोशल मीडिया से मुराद है? अच्छा, इसकी वजह क्या है? गैरअहमदियों के साथ ना बैठे, ठीक है? और ठीक है। जो भी आपसे गलती हुई है उसकी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और ख़त लिखें हुजूर को, आपका काम गलती- क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। तनवीर साहब आप आप ना गलती- उनसे प्राइवेट आप बात सोशल कर लें। मीडिया को छोड़ दें प्लीज़। अगर आप अहमदियत में दोबारा आना चाहती हैं, सोशल मीडिया को आपको खैर बात कहना पड़ेगा। टिकटॉक हाँ जी, या व्हाट्सएप भी? नहीं व्हाट्सएप जारी रखें, मगर ऐसे जैसे ये आप आमर नज़ीर साहब और ये इन लोगों के साथ बैठती तो आपकी माफ़ी नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता दूं। सिर्फ आमिर नज़ीर साहब या किसी कोई और नाम भी? नहीं, ये जितने भी जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को गालियां देते हैं इनके साथ मत बैठे आप। ये आप सोच लें कि आपने जो गालियां दिलवानी है या आपने इनके साथ बैठना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फैसला खुद करें। गालियाँ क्या तो नहीं मैं पढ़वाती। नहीं आप नहीं देती, मगर ना वो मैं- दे देते ना- हैं ना, या वो मगर दे मेरे देते हैं। सामने आपको नहीं भी देते पता वो। है, जो मैं आपको बात समझानी चाह रहा हूँ ना, वो आपको पता चल चुका है। अगर आप चाहती हैं तो आप हजूर को खत लिखें, इस्तग़फ़ार करें, सोशल तो ये मीडिया को बात- छोड़ें। तो ये बात साहब, मुरब्बी साहब आप मुझे ना- डायरेक्ट भी तो कह सकते थे। तनवीर साहब आप इनको अच्छी तरह समझाएं। ये इसलिए कि आपने डायरेक्ट नहीं कहा, आपने सरेआम पूरे सोशल मीडिया पे कहा है। प्लीज आप पहले अल्लाह अपनी गलती को अकबर। तस्लीम करें। मैं यही कह रही हूँ, अल्लाह आप ना इनको अच्छी तरीके से समझाएं। आप फोन पे इनसे बात करें, इनको समझाएं जरूर, और इनको बताएं फिर इनकी क्या गलती है ना, इन्होंने क्या कुछ किया। बड़े तरीके से मुझे लगता है आप समझा पाएंगे और ये समझ भी जाएंगी। प्यारी आप उनसे- प्यारी बहन, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत मैं शुक्रिया आपको ये जज़ाकल्लाह। मैं जो- भी आपकी बहुत करती हूँ, आप बुजुर्ग हैं हमारे, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपको। मैंने जो आप शायद मेरी बात को गौर से कोई सुन नहीं रहा, तवज्जो नहीं दे रहा, जी वो ये मैं कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया को छोड़ें। ये इसके पीछे यही एक मतलब है जो
बड़ी चीज़ है ना। आप सोच सकती हैं कि ये मौलवियों के साथ बैठी हों और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को और खुलफाए वक्त को कोई गालियां दें और ये चुप करके सुनती रहें। आप सोच सकती हैं ऐसा? नहीं, मैं तो नहीं सोच सकती, लेकिन मैं हाँ, यही कह रही बस हूँ ये बात अपनी बहन को समझाएं। मैं ये कह रही हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा अब आप समझाएं, मैंने समझा के नहीं, देख लिया। आपको बात, आप अगर समझदार हो तो मेरी बात की तह तक आप पहुंच जाती। जी आप जी अभी जी, तक नहीं पहुंची। नहीं नहीं, मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं हाँ, ये बस चाह ये रही हूँ बात अपनी, आप इनको जरूर यही बात समझाएं। मेरी प्यारी बहन अपनी ये सफिया बहन को समझाएं। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने आपकी बात मान ली है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगेगा कि आप भी उनको समझाएं। आप इनको फोन अपना नहीं, नंबर दें, मैं वो तो अभी इस आपसे काबिल ही नहीं बात समझता। करती हैं। मैं तो अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता। बहरहाल मैं प्यारी बहन को सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ कि सोशल मीडिया को छोड़े और बाकी काम अल्लाह ताला सारे ठीक कर देगा। इंशाअल्लाह ताला। तनवीर साहब, आप ना सफिया साहबा को अपना फोन नंबर दें, वो आपसे अभी बात करती हैं और मुझे यकीन है ये समझ जाएंगी। आप लगता है मुझे बड़ी बहन है तो आप भी समझाए ना। जी, मैंने तो बहुत समझाया है, ये तो बहुत बहुत समझाया। समझाती है मुझे, तो दिन फिर रात समझाती आप है। देखें, लेकिन प्यारी मैं इनकी दोनों बात अच्छी इसलिए अच्छी नहीं बहनें मानती हैं। तनवीर भाई, जी, मैं इनकी इसलिए नहीं मानती क्योंकि मैं कहती हूँ कि सारी दुनिया जाती है टिकटॉक पे, सारी दुनिया ये करती है। मुझे रीज़न बताओ कि अगर मेरी वजह से मुरब्बी साहब का दिल दुखा है तो मैं वो काम नहीं करूँगी। प्यारी बहन, मुरब्बी साहब तो कहते मेरा तो दिल दुखाया ही नहीं, ये तो मेरी हेल्प करती थी, बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ाती थी। जो कुछ हुआ आपने खुद किया है। किसी मैंने खुद किसी किया मुरब्बी है। का इसमें हाथ नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। समझ नहीं आ रही है कि अगर नहीं, मैंने खुद आपको अपना समझ खराज आ कैसे रही कर है, लिया। आप समझना नहीं चाहती हैं। प्लीज बहन इस्तगफार करें, और जो आपको पता है क्या गलती हुई है, और मैंने छोटे छोटे लफ्जों में आपको बता भी दिया कि आपसे क्या गलती हुई। फ़ोन पे तो मुझे बड़े बड़े लफ्ज़ों में समझा देंगे। नहीं, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं किसी की तरबियत कर सकूं, मगर अब आपके ये पास मैं मेरी कह बात देता हूं अमानत कि है। आपकी, आपने जो अभी तक हो रहा है ना, ये भी गलत हो रहा है। समझ गए आप इसको छोड़ें। सोशल मीडिया पे आप यकीनन फैमिली वाली होंगी। मेरी कुछ तो वीडियोस पहुंची हैं ना तनवीर भाई, जिसके बेस पे आप कह रहे हैं। तो फिर आप ख्याल करें ना बहन। हाँ, तो वो फिर जिस तरह से एक एक उन्होंने बताया आपको कि मुझे मौका क्यों नहीं मिला अपनी सफाई पेश करने का, इसलिए कि जिन लोगों ने आपके या खिलाफ अपनी इस्लाह रिपोर्ट करने की के है, लिए। जिन लोगों ने आपके खिलाफ रिपोर्ट की है, वो उन्होंने सबूत के साथ आपको मतलब भेजी है चीज़ें। तो इस वजह से वो मुरब्बी साहब का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। आप मतलब सब जिन लोगों से आपके तल्लुकात हैं, आप उनसे पता करेंगे किस किस ने आपके खिलाफ रिपोर्ट की है। अब मेरा तो आपसे ताल्लुक है। मेरी सारी अहमदी बहनों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने कोई किसी किस्म की आपकी इज्जत के ऊपर हाथ नहीं, कोई ऐसी गलत बात नहीं की। आपने अगर बिल्कुल आपको बिल्कुल मेरी आपने उनसे बात बुरी पूछा लगी नहीं। है, आपको नहीं मेरी नहीं बात बुरी लगी है तो मैं माजरत करता हूँ आपसे, मगर मैं बहन भाई, आपको आप हमारे बचाना बड़े चाहता हूँ। हैं, आप काबिल हाँ, इज्जत हैं, आप हमदर्दी करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने उनसे पूछा था कि अगर आपके पास वीडियोस आई हैं तो आपने जो है वो उसको बुलाकर बात की है, उस बारे में उसको वार्निंग दी है कि अब आइंदा ऐसा ना करना, जो भी उसने किया है। ये मैं कह रहा हूँ कि मुरब्बी साहब इसमें शामिल नहीं हैं। आपको बात समझ क्यों नहीं आ रही? ये आप आ गई जाने और समझ। आपके स्टूडेंट जाने। स्टूडेंट्स हाँ जी, यानी कि सोशल मीडिया नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स का मामला है। हाँ, बस जिन जिन लोगों से आपने कोई बातें की हैं, उन्होंने हजूर तक पहुँचाई हैं बातें। आप उनसे पता करें क्या हुआ है। इसका मतलब है समझ आ गई। अगर हाँ स्टूडेंट्स जी, है ना तो हमारी क्लासेस तो जूम पे होती थी।
اس کا مطلب یہ ہے بس جو کہ بھی ہے وہ کیا ہوا آپ کے ان ساتھ، کی وہ آپ سوشل میڈیا نہیں ہے. اس کی تلاش کریں آپ کہاں کہاں پہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی غلط بات کی ہے جماعت کے خلاف یا مرزا صاحب کے خلاف یا کوئی حضرت